As an advocate for right to energy and the father to right to energy movement, you might have witnessed that there might be many negative impacts of power sector on environment as well. Toxic elements and metals like lead and cadmium was released by these solar modules, and they have the capacity to cause environmental and health issues. So, are there any laws to deal with such environmental issues? Oh, that's a wonderful question. Or within next 10 to 15 days, a new rule is coming into force. That rule is called E-Waste Management Rules 2022. So there was a challenge, and there was an environmental challenge which was pointed about by the experts. और वो environmental challenge ये था कि भाई lead or cadmium. So for example, if a damaged solar PV module is there and it is kept in open, और रेन वाटर होता है, रेन वाटर के कारण cadmium and lead will leak from those modules, and the soil will absorb it. It may cause lot of health hazard, not only to animals or plants. It will cause grave health hazards to human beings also. So this was the point which was highlighted continuously, and this is why new e-waste management rules 2022 were notified. The new e-waste management rules 2022 includes solar panels, solar cells, solar modules. Number one. Number two, these rules will be applicable from 1st April 2023. So within few days, these rules will become applicable. That is why they become very, very important. So सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस रूल्स में कौन कौन सी चीजें फॉल नहीं करती हैं. So the rule provides that there are 4 things which do not fall under the rules, purview of the rules. So first is, if there is a micro enterprise. Micro enterprise has been defined in MSME Act. MSME Act defines a micro enterprise as to if there is an investment of 1 crore and less, number one, and number two, if the turnover of that enterprise is 5 CR less than 5 crores, then it is a micro enterprise. So these rules, e-waste management rules, do not apply to a micro enterprise, number one. Number two, they also do not apply to batteries. So for batteries, there is another rule which is applicable, and that rule is called Waste Batteries, Battery Waste Management Rules 2022. These rules do not apply to plastic packages also, packaging plastics also. For packaging plastics also, there is another rule which is called Plastic Waste Management Rules 2016. These rules also do not apply to radioactive materials. So radioactive material के लिए एक पूरा act है, Atomic Energy Act 1962, and these are applicable. In case of transportation of e-waste also, these rules will not be applicable. For transportation of e-waste, there is another rule which is called Transportation of e-waste, Hazardous and Other Waste Management and Transboundary Movement Rules 2016. So for transportation, whether it is cross-boundary transportation or within India transportation, these rules are not applicable. Let us do reverse. So, sir, counter question होगी, sir, ये rules apply कहाँ होते हैं? All right. So these rules, to understand, सबसे पहले we have to understand what is the meaning of e-waste. So e-waste में एक तो word आता है e, which is called electronics, and second word is waste. So e में there are 2 words. So if there is a electrical or if there is a electronic, if there is a electrical equipment or there is a electronic equipment, and solar PV modules, panels and cells are also included in the electric equipments. ये तो E हो गया. Waste में भी 2 चीजें आती है. Number one, during the manufacturing process, if something is discarded, so एक रेसिड्यू निकलता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, तो दैट इज वन. ये है वेस्ट, है ई वेस्ट. सेकेंड वेस्ट है, सॉरी नहीं, इसको रिवर्स करते हैं. सो इसको रिजेक्ट्स, वी कॉल इट रिजेक्ट्स. सो नंबर वन, इफ वाइल मैन्युफैक्चरिंग, इवन नॉट मैन्युफैक्चरिंग अगर रिफर्बिशमेंट हो रहा है या रिपेयर प्रोसेस हो रहा है, अगर वहां से कोई भी रिजेक्ट मटेरियल निकलता है,
That is one waste. Second waste is when the solar plant is decommissioned. So when a solar plant is decommissioned, जितने भी solar panels है वो discard कर दिए जाते हैं. So that discarded materials. So E का मतलब होता है दो चीजें, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. वेस्ट का मतलब होता है या तो नंबर वन रिजेक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, रिफर्बिशमेंट और रिपेयर प्रोसेस, और सोलर पैनल्स discarded after their life has been completed. So it is said that 20-25 years is the life of a solar panel. So this is e-waste. E-waste can be of three types as per rules. Number one, and we will discuss e-waste of these three types. इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से e-waste कवर्ड है, कौन कौन से लॉस कवर्ड नहीं है, वो क्लियर कर लिया है हम लोगों ने. अब कौन कौन से e-waste कवर है, दैट इज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज शेड्यूल्ड ई-वेस्ट. इट इज नॉट दैट कि सारे ई-वेस्ट कवर्ड हैं. सो आप डेफिनेशन देखोगे ई-वेस्ट की, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग सोलर पीवी मॉड्यूल्स, पैनल, सेल्स. एक तो ये हो गए. उसमें क्या है, दे आर आइदर डिस्कार्डेड ड्यूरिंग द डीकमिशनिंग ऑफ द प्लांट, और दे आर रिजेक्ट्स ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, रिफर्बिशमेंट, रिपेयरिंग प्रोसेस ऑफ द सोलर पैनल्स और द सोलर प्लांट्स. ये तो हो गया सारे ई-वेस्ट. लेकिन सारे ई-वेस्ट नहीं कवर्ड है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ई-वेस्ट. नंबर वन, इट इज ओनली द ई-वेस्ट विच आर मेंशन्ड इन द शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द रूल्स. Those are only covered. So that is called scheduled e-waste. Okay. So there is first schedule that is called Schedule of E-Waste Management Rules 2021, first schedule, जिसमें लिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी. सेकेंड है, सेकेंड टाइप ऑफ ई-वेस्ट इज हिस्टोरिकल ई-वेस्ट. सो भाई 1 अप्रैल 2023 में तो दीज रूल्स विल बी एप्लीकेबल, बट सोलर पैनल्स तो आज भी बन रहे हैं. Will those rules be applicable to applicable to historical e-waste? So 30th और 1 अप्रैल 2023 के पहले तक जितने ई-वेस्ट जनरेट हुई है, जितने भी सोलर मॉड्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं, दे आर कॉल्ड हिस्टोरिकल ई-वेस्ट, अवेलेबल एज ऑन 1 अप्रैल 2023. थर्ड इज orphaned e-waste. So if somebody is making a non-branded product where there is no brand, or somebody is assembling, produced by company. So for example 31st March तक या 30th March तक कोई कंपनी क्लोज डाउन हो जाती है. What happens? What is these e-waste called? That e-waste is called orphaned e-waste. So 3 words हैं. एक तो scheduled e-waste, which is type 1, which is mentioned in the schedule. Second is a historical e-waste. So 1 अप्रैल के पहले जितना भी सोलर मॉड्यूल्स और बाकी e-waste प्रोड्यूस हुआ है वो historical e-waste है. Third type is orphaned e-waste. So orphaned means the company has been closed or somebody is assembling. It is a non-branded product. तो ये orphaned. So now we are clear कि कौन कौन से टाइप्स के ई-वेस्ट होते हैं. अब इशू क्या है? इशू ये है कि भाई लेड और कैडमियम की पोल्यूशन हो जाएगा एंड सॉइल हेल्थ विल गेट इरोडेड. इट मे कॉज एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इश्यूज. व्हाट इज द सॉल्यूशन? What is the solution or what is the law which has to be applied? This is important to understand कि क्या हम इसमें क्या इसका solution क्या निकालना चाहते हैं. Solution आता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में. सुप्रीम कोर्ट 5 प्रिंसिपल्स ले डाउन करता है इन केस ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन इश्यूज. फर्स्ट जो प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करा वो था टेस्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो ऐसा नहीं हो कि हम अभी बहुत सारा पॉल्यूशन कर दें और फ्यूचर जनरेशंस हैव टू फेस प्रॉब्लम्स. सो व्हाटएवर डेवलपमेंट वी आर डूइंग इट शुड बी सस्टेनेबल. सो on a sustained basis we should be able to produce solar modules, panels, and then next transfer it to the next generation and we should move forward. Second principle of environment which Supreme Court has laid down is polluter pays principle. Whoever pollutes, in this case you have to think about who is polluting. So if cadmium and lead is leaking from a solar panel or any other electric e-waste, then
पॉल्यूटर जिस मैन्युफैक्चर कर रहा है वो है, या जिसने इंस्टॉल करा है सोलर डेवलपर वो है, या जो कंज्यूमर यूज कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी वो पॉल्यूटर है? हु इज द पॉल्यूटर? सुप्रीम कोर्ट का प्रिंसिपल क्लियर है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल. सो इफ whoever is polluting he has to pay. Third principle is precautionary principle. If there are two ways of doing the same thing, do the thing in a way where it is less hazardous to the nature. It is called precautionary principle. ये 5 चीजें जो मैं बता रहा हूं इसमें पूरा एनवायरमेंटल लॉ का सम है एक्चुअली. जब भी एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन बनता है, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये 5 प्रिंसिपल, अगर जब भी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल डिसीजंस देती है, इन 5 प्रिंसिपल्स के बेसिस में डिसीजंस होते हैं. तो दीज प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट. सो सबसे फर्स्ट है टेस्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, which was given in rural litigation and entitlement केंद्र versus state of UP का judgment है ये, and it was given in 1985. Second, it is also famously called Dehradun Mussoorie Hill Quarrying case. Second judgment which was important was given in 1996, which is called Vellore Citizen Welfare Forum versus Union of India, Tamil Nadu Tanneries case. उसमें दिखा प्रिंसिपल आया था polluter pays principles. Whoever is polluting should pay for it. Third principle was given is payment of compensation for ecological loss. ये रिवर्स है. Polluter pays principle में whoever is releasing the pollution pays. यहां पे पेमेंट फॉर कंपनसेशन फॉर इकोलॉजिकल लॉस, अगर आपने पेड़ काट दी जो इकोलॉजी पहले से बनी हुई है उसको खराब करके, देन यू हैव टू पे. दिस वाज गिवन इन द केस ऑफ एस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. फोर्थ प्रिंसिपल जो एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ केस में आया था, इट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट. सो सर्टेन रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, सी, फॉरेस्ट हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द पब्लिक. So it is unjustified to make them subject of private property. So doctrine of public trust, fourth. And fifth principle जो 1999 में दिया गया, AP Pollution Control Board versus MB Naidu में दिया गया precautionary principle. Fifth principle, precautionary principle. So precautionary principle ये है, if there are two ways of doing thing, do it in a way which is less polluting. अब these 5 principles have been applied in this rule actually. E-Waste Management Rules 2022, so that environmental damage does not take place because of e-waste. इसके लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करा गया. इकोसिस्टम में 4 मेन एक्टर्स. फिल्म में एक्टर्स होते हैं ना, मेन एक्टर्स होते हैं, फिर सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं. सो 4 मेन एक्टर्स हैं, वो है मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर एंड रिसाइकलर. और 2 साइड एक्टर्स हैं. वन इज बल्क कंज्यूमर एंड देयर इज अनदर साइड एक्टर. सो इफ अ हेल्प इज टेकन फ्रॉम अ रिसाइकलर फॉर, डिसमेंटलर से हेल्प लेते हैं कि भाई आप डिसमेंटल कर दो, मैं रिसाइकिल कर दूंगा, तो वो साइड एक्टर है. So dismantler and bulk consumers are side actors, supporting actors. So 4 plus 6 actors are there in this scheme of things. कैसे ये वर्क करेगी? So first है मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर का रोल इसमें डिफाइंड है. मैन्युफैक्चरर का रोल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ somebody is manufacturing solar panels, then first responsibility is register. एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा जो Central Pollution Control Board. Central Pollution Control Board is the producer or the director. So everyone has to work as per the producer and the director. Central Pollution Control Board. First is they will create a portal, online portal. तो मैन्युफैक्चरर को अपने आप को पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा. जो भी सोलर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, they have to get themselves registered in the portal actually. Number 2, they have to collect the e-waste generated during manufacturing process. So during manufacturing process, we have discussed कि भाई आप रिजेक्ट्स आते हैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में. तो 1000 सोलर मॉड्यूल्स बनाए तो पता चला एक मॉड्यूल खराब है, इट इज अ रिजेक्ट.
या उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कुछ खराब हो गए हैं तो वो रिजेक्ट्स हैं. So they have to, second thing, they have to collect it. Third is they have to file returns in the portal. So annual return, quarterly return file करना पड़ेगा कितने रिजेक्ट्स हुए हैं. So ये मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. चार फर्स्ट एक्टर. सेकेंड एक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर है वो है प्रोड्यूसर. सो प्रोड्यूसर, अ मैन्युफैक्चरर कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूसर. अगर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराई है, आपने ब्रांड अपना लगाया है, तो जिसने अपना ब्रांड लगाया वो प्रोड्यूसर है. सो intelligent person says कि okay, I will not produce the modules, I will be selling the modules, I will contract it out to a certain manufacturer and tell him to produce solar panels, but the brand will be mine. So second producer वो है जिसने अपना ब्रांड लगाया है. थर्ड प्रोड्यूसर वो है जिसने इंपोर्ट करा है. Import, person who is importing has also been defined as a producer. Up, so whether you are importing, acha, it is also been clarified, if you are importing a second hand product also, then also you are producer. So number one, if you are manufacturing, then you are a producer. If you are branding a product, then also you are a producer. If you are importing, then you are a producer. Fourthly, if you are importing a second hand module also, then also you are a producer. तो चार प्रोड्यूसर हो गए. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है. ये सारे कंप्लायंस स्टार्ट कर रहे हैं. ऑलराइट. अब व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर की भी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्टर इन द पोर्टल. So you register, if you are a manufacturer plus producer, so you registered as a manufacturer also, you can register yourself as a producer also. There is no issue to get registered in 2 categories. There will be 2 registrations in the same portal. Second responsibility is extended producer responsibility, EPR. अब वो कॉन्सेप्ट आ जाता है पॉल्यूटर पेस का प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक प्रोविजन निकाला गया है कि भाई whoever is the producer, whoever is importing or second hand importing or manufacturing or branding himself, then his responsibility will not end by producing a product. His responsibility will be extended producer responsibility. And extended producer responsibility का मतलब ये है, he will have to ensure that recycling of the products which he is producing or the solar modules which he is producing is done. इशू ये होगा कि सर कितनी रिसाइकलिंग करनी है. ऑल राइट. अब फर्स्ट शेड्यूल में तो हमने बताया कि कौन कौन से प्रोडक्ट की रिसाइकलिंग करनी है या कौन कौन से प्रोडक्ट का मतलब ई वेस्ट है. लेकिन थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल में यह बताया गया है कि कितनी रिसाइकलिंग करनी है. वेदर इट इज द वॉट एवर यू हैव प्रोड्यूस्ड, उसकी 60% रिसाइकलिंग करनी है, 70% रिसाइकलिंग करनी है, 80% रिसाइकलिंग करनी है. उसके लिए टाइम फ्रेम बना दिया गया है. लेकिन जब थर्ड शेड्यूल में यह लिखा गया कि भाई आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं और आपको 60% की रिसाइकलिंग करनी है विद इन 20 ईयर ऑफ 23-24, तब जो नए प्रोड्यूसर्स थे दे ऑब्जेक्टेड टू इट. दे सेड सर वी आर न्यू प्रोड्यूसर्स, हमारा तो एक भी प्रोडक्ट अभी उसकी लाइफ साइकिल ही खत्म नहीं हुई है. मैंने आज प्रोड्यूस करा, उसकी लाइफ साइकिल 10 साल है. सो फिर एक और शेड्यूल ऐड करा गया विच इज कॉल्ड फोर्थ शेड्यूल. फोर्थ शेड्यूल में उनके लिए थोड़ी लाइबिलिटी, जो टारगेट्स उनके लिए कम कर दिए गए 25-30%. इट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड इज द प्रोड्यूसर हैज टू क्रिएट अवेयरनेस. फोर्थ इज ही हैज टू फाइल रिटर्न्स. जो रिटर्न्स हमें फाइल करने पे भी आपने 3-3 महीने में कितनी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लाई करी, दोज रिटर्न्स हैव टू बी फाइल्ड. ठीक है. तो प्रॉब्लम ये है, व्हाट हैपेंस, सो हाउ डू यू एंश्योर कि भाई एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर टारगेट 60% ऑफ द प्रोडक्ट को रिसाइकिल करने का है तो 60% का रिसाइकलिंग हुआ है. उसके लिए एक रास्ता निकाला गया और रास्ता ये निकाला गया कि जितने भी रिसाइकलर्स हैं
वो उन रिसाइकलर्स को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्टिफिकेट्स इशू करेगी. दे विल बी ऑन ऑनलाइन सर्टिफिकेट एंड दे विल बी कॉल्ड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट. जैसे रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन होता है, सिमिलरली देयर आर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट. अच्छा, दीज ऑल दीज थिंग्स आर वर्क इन प्रोग्रेस एक्चुअली, क्योंकि 1 अप्रैल से अप्लाई होगा. सो इन सबकी कैलकुलेशंस और प्रोसेस चल रहा है अभी. सो वंस अगर आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करा है और आपका टारगेट 60% को रिसाइकिल करने का है, आपने 60 अगर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट खरीद लिए फ्रॉम अ रिसाइकलर, then you are done, your compliance is complete. All right. लेकिन इसमें एक चैलेंज और था. भाई एनवायरमेंटलिस्ट का ये भी कहना था कि इफ यू आर रीयूजिंग द प्रोडक्ट, आपने रीफर्बिश करा लिया प्रोडक्ट को और रीयूज कर लिया, तो आपने एनवायरमेंट को सेव कर लिया. अगर आपने पैनल 25 साल यूज करके 25 साल के बाद उसको रीफर्बिश करके 10 साल और यूजेबल बना दिया, लेट अस अज्यूम, then those targets will not be good actually. It will not encourage reuse of the product. So refurbisher को encourage करने के लिए and reuse product को refurbish करने के लिए encourage करने के लिए एक और concept लाया गया, and that concept is called refurbishing certificates. So for example, you get reuse. हमारे इंडिया में तो आदत है, हम एक थैली लेते हैं दुकान से, फिर उसको घर में 4, 5, 6, 7 बार यूज कर लेते हैं किसी ना किसी, जब तक वो फट नहीं जाती. बट दैट इज अ गुड कॉन्सेप्ट, दैट इज गुड फॉर क्लाइमेट चेंज एक्चुअली. सो इफ देयर इज अ रीफर्बिशिंग ऑफ द सोलर पैनल्स, इन केस ऑफ दैट देयर विल बी रीफर्बिशिंग सर्टिफिकेट. जिस तरह से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स है, उसी तरह से रीफर्बिशिंग सर्टिफिकेट्स हैं. अगर रीफर्बिशिंग सर्टिफिकेट किसी ने ले लिए, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफर हो जाती है. सो आपका अगर 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स में 50 यूनिट्स को आपने रीफर्बिश और रीयूज के लिए तैयार कर लिया, तो जितने साल का 10 साल तक आपका रीयूज प्रोडक्ट चलेगा. जस्ट फॉर एग्जांपल, लाइफ ऑफ द सोलर पैनल इज 25 years. आफ्टर 25 years यू रीफर्बिश इट फॉर 10 years. सो 10 years की एक्सटेंडेड लाइफ हो गई उसकी. एक्सटेंडेड लाइफ में आप रीफर्बिशिंग सर्टिफिकेट लेंगे और आपके टारगेट्स उतने कम हो जाएंगे. ऑल राइट. इसमें एक और एनकरेजमेंट दिया है गवर्नमेंट ने. अगर रीफर्बिशिंग सर्टिफिकेट लेंगे तो टारगेट्स भी आपके 75% होंगे एक्सटेंडेड परचेज रिस्पॉन्सिबिलिटी के. सो 25% का आपको और लिबर्टी मिल जाएगी, बिकॉज यू आर रीयूजिंग एंड रीफर्बिशिंग द सेम प्रोडक्ट. सो फर्स्ट एक्टर वॉज मैन्युफैक्चरर, सेकेंड एक्टर वॉज प्रोड्यूसर, वाइडेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर. थर्ड एक्टर इज रीफर्बिशर. सो रीफर्बिशर, as the name is there, he refurbishes the products. So first काम उसका रिफर्बिशर का जो कंप्लायंस करना है, रजिस्टर करना है पोर्टल में उसको भी. सेकेंड, उसको कलेक्ट करना है ई वेस्ट ड्यूरिंग रिफर्बिशिंग एंड हैंड ओवर टू रिसाइकल. थर्ड इज, जो रिफर्बिश प्रोडक्ट है, it should comply with the BIS standards. It should fall in the scheme of compulsory registration scheme of Ministry of Electronic and Information Technology. So when you are refurbishing some product, you have to inform the government. You have to register also, and it should be compliant. ऐसा नहीं है कि refurbish project जो है वो low standard का होगा. It should be of quality standard. और fourth है, आपको returns भरनी है. Everything is online. Fourth main actor is recycler. So recycler की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करी है कि he has to register in the portal, he has to recycle. आपको फैसिलिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी एज पर द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. जो भी रेसिड्यू बचेगा ड्यूरिंग रिसाइकलिंग, इट हैज टू गो टू ऑथराइज्ड ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी. आपका अगर जो भी फ्रैक्शंस जो रिसाइकिल नहीं हो सकता, जो आप नहीं रिसाइकिल, सो देयर आर वेरियस रिसाइकलर्स. Some recycler will be specialized in recycling some special product. So अगर आप उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, you have to give it to the specialized person. All right. It is also provided, अगर शेड्यूल 1 में प्रोडक्ट्स जो मेंशन है उसके अलावा भी प्रोडक्ट्स को आप रिसाइकिल कर सकते हो. सो अभी जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उसका डिस्कशन मैंने कहीं नहीं दिखा. चार्जिंग स्टेशंस की लाइफ 10 years मानी जाती है, एवरेज लाइफ. What happens to charging stations after that?
and recyclers can also seek help from dismantlers. So these recyclers will be able to recycle charging stations also and other future के जो products होते हैं. So ये पूरा इकोसिस्टम है, लेकिन सोलर वालों को स्पेशली बहुत चैलेंज था. सोलर वालों ने ये कहा कि सर सोलर पैनल की लाइफ 25 इयर्स होती है और आप एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हमें डाल दोगे तो हमें बहुत चैलेंज होगी. अब 25 इयर्स में तो हमारी कंपनी भी बंद हो जाएगी और बहुत सारी चीजें हो सकती है. 25 इयर्स अ लॉन्ग टाइम टू सी. सो एक्सेप्शन वॉज क्रिएटेड. एक्सेप्शन ये क्रिएट करा गया, टारगेट्स जो शेड्यूल 3 शेड्यूल 4 में, दीज डू नॉट अप्लाई टू सोलर पैनल्स. So as of now, there are no targets for solar panels. Remember, they have to register in the portal. क्या क्या काम करना है उनको नंबर 1, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है photovoltaic modules or panels or cell, they have to register in the portal. Number 1 they have to do. Second thing which they have to do is, जो भी रेसिड्यू जनरेट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में, they have to store that residue till the year 2034 and 35. सो अगले 20-25 साल तक जो भी रेसिड्यू जनरेट हो रहा है उसको स्टोर करना है. ठीक है, और कोई एक्शन नहीं लेना है. थर्ड इज दे हैव टू फाइल एनुअल रिटर्न. रजिस्ट्रेशन हो गया, वहां पे आपने रेसिड्यू सेव कर लिया, फाइल एनुअल रिटर्न्स. फोर्थ इज एंश्योर दैट द प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट इज डन अकॉर्डिंग टू द विद एप्लीकेबल रूल्स एंड गाइडलाइंस. जो बाकी वेस्ट हैं वाइल मैन्युफैक्चरिंग विच आर कवर्ड, सोलर मॉड्यूल्स, पैनल्स और सेल्स को छोड़ करके, वो तो नॉर्मल प्रोसेस में आपको करना है. नेक्स्ट इज पुट एन इन्वेंट्री ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स और पैनल्स और सेल्स डिस्टिंक्टली ऑन द पोर्टल एंड कंप्लाई विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस लेड डाउन बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. सो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विल इश्यू गाइडलाइंस एंड एज पर द गाइडलाइंस दे हैव टू बी स्टोर्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज द रिसाइकलर ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स और पैनल्स और सेल्स recovers material as per guidelines laid down by the Central Pollution Control Board. These are the guidelines as of now which are applicable to solar plants. Solar plants के पास solar जो module manufacturer है उनके लिए अभी targets नहीं है. Exception has been provided till the year 2034-35.